Good morning, friends. Very good morning. Yes, good morning, all of you. Okay, guys. So today we are starting and completing very important chapter from learning purpose also and from exam point of view also. That is financial statement of non-profit organization. Right, guys? So let's start with. See, you have learned financial statement of partnership, financial statement of proprietorship when they are not doing manufacturing or when they are doing manufacturing. Okay. And this is final statement of NPO. Now, which types of accounts and statement we should prepare? Okay. That it is starting with three types of statement we need to prepare. First, we need to prepare RNP, that is receipts and payment account, which is, as you know, same as cash book. Second, we need to prepare income and expenditure, which is same as profit and loss. And third, we need to prepare balance sheet, which is same as our routine balance sheet format. So receipt payment, income expenditure, and balance sheet, which we are supposed to prepare, right? Now, what is the NPO? It is a perfect definition. NPO is a legal accounting entity that is operate for the benefit of the society as a whole rather than for the benefit of proprietor or group of partners or a shareholder. So basically this entity are incorporated not for the benefit of owners or a managers or a management. They are incorporated for the benefit of society as a whole. So basically what they are doing, they are rendering services to the society or member of that particular organization. And therefore, guys, here we are not preparing trading and PNL because trading and PNL generally show profits because the object is to earn profit. Here, object is not to earn the profit, right? Okay. Now, this is the nature of receipts and payments account. As it is mentioned, it is nothing but it is summary of cash book without date call, right? So whatever cash received, it will be on debit side. Whatever cash given, it will be on payment side. Now, when we are preparing cash book, if you recall the cash book, okay, we are debiting all cash receipts, whether it is capital nature or a revenue nature.
We are crediting all payments, whether it is capital nature or a revenue nature. So whatever nature, it will be part of RNP. Naturally, it will be start with the opening cash and bank balance. It will be end with the closing cash and bank balance. And being a cash book, naturally, it will not show any profit and loss, right? Because it is a cash book. It will start with opening balance of cash book. It will be end with the closing balance of cash book. It will not show any surplus or deficit or profit and loss because it is a cash book. And the last important point, being a cash book, it will not contain non-cash items like depreciation. It will also not contain the entry of profit and loss on sale of assets or profit and loss on sale of investments because it will be part of profit and loss. That is income and expenditure. So guys, if you want to do a long question as well as short question very clearly and without any hurdle and problem, then first of all, you need to understand the format of RNP, format of INE, and format of balance sheet very proper. So before starting question, मैं just एक बार वो format revise करवा देता हूँ. I am sharing the PPT in which there is a format. तो just refer it और अगर आप चाहो तो एक बार फटाफट लिख देना because after understanding the formats and basic theory, we will start the questions. Right, guys? So first I am sharing the format of receipts and payments. Now, friend, this is the format of receipts and payments. It will be start with the cash and bank opening. It will be close with cash and bank closing. All receipts will be on debit side. All payment will be on credit side. And please be very careful. I have written in the bracket revenue nature, capital nature, current year, previous year, or next year. Everything will be part of RNP. Say for example, as you know, subscription is your income. It will be on receipt side. Now you received 1 lakh rupees subscription during the year. तो आपको यहाँ 1 लाख डेबिट कर देना है, राइट? डेबिट साइड आपको 1 लाख लिखना है. अब इवन दो वो 1 लाख के अंदर से फॉर एग्जांपल 90,000 करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन है, 6,000 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर वाले हैं एंड 4,000 नेक्स्ट ईयर के एडवांस या तो प्री रिसीव्ड है. कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें पूरा का पूरा 1 लाख डेबिट करना है. सामने पेमेंट से फॉर एग्जांपल सैलरी, आपने सैलरी 30,000 का पे किया तो 30,000 यहां क्रेडिट साइड लिखना है. अब इवन दो that 30,000 includes 25,000 of current year, 3,000 of outstanding of previous year and 2,000 of prepaid of next year. उससे कोई फर्क पड़ता नहीं. सो द पॉइंट टू बी नोटेड, पैसे आए तो उधार एंड जाए तो जमा. सिंपल. ना नेचर का फर्क है, ना ईयर का फर्क है, ना पीरियड का फर्क है. राइट? कैपिटल, रेवेन्यू, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई फर्क पड़ता नहीं. और जो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है, अगर एज यू नो कि आपको कैपिटल फंड नहीं दिया, देन यू नीड टू प्रिपेयर दी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑल्सो. तो जो ओपनिंग कैश एंड बैंक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे. सो आई होप गाइस आपने फॉर्मेट को या तो लिख लिया या तो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या तो समझ लिया है. सो वी आर गोइंग टू दी
Next slide, which is important point of RNP. Now, friend, depreciation being a non-cash item, it is not part of RNP. मैंने पहले बोल दिया आपको, right? And profit and loss on sale of assets investments is also not part of RNP. So ये दो बातें रिसिट पेमेंट्स अकाउंट में आती नहीं है, राइट? इट इज पार्ट ऑफ, नीचे लिखा है मैंने, हाउएवर बोथ आर पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? Okay, friend. After RNP, let's move to the module. Now, next is income expenditure account. Now, it is clearly mentioned, as I told you earlier also, कि ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, राइट? This is same as profit and loss. And one more important point, it is always prepared on accrual principle. And as you know guys, accrual principle का मतलब होता है कि you need to make the adjustment of, what is the meaning of accrual principle guys? It means you need to make the adjustment of outstanding and prepaid. Accrual means you need to add the outstanding, you need to minus the prepaid, depend on income and expense, right? और गाइस बहुत क्लियर एक कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए कि जब आप पीएनएल बनाते हो और से फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कोई भी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, कुछ भी हो, तो देयर आर 4 एडजस्टमेंट मैक्सिमम, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर प्लस प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। और अब जो अमाउंट आएगा प्लस माइनस करने के बाद, दैट विल बी ट्रांसफर टू आउटर कॉलम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और आईएनई। सो ये जो लिखा है, दो आउटस्टैंडिंग एंड दो प्रीपेड, इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रूवल कंसेप्ट, इसका मीनिंग हमें हर बार, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है, हमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के एडजस्टमेंट करने हैं, एंड मैक्सिमम एडजस्टमेंट मे बी 4, that is outstanding of current year, outstanding of previous year, prepaid of current year and prepaid of previous year. It is purely accrual concept बोलो कि matching concept बोलो, जो आपने सीखा है फाउंडेशन में financial statement of proprietorship वाले चैप्टर में, सेम। So now let's move to the perfect format of INA. Now friend, this is same as profit and loss. Debit side all expenses, credit side all income. Depreciation, which was not part of RNP, will be part of INE. Loss on sale of investments, not part of RNP, now it is part of INE. And income expense के ब्रैकेट में अगर आप देखोगे, ध्यान से लिखा है only revenue nature and only of current year.
So whatever income expense we are writing over here, it will be only of revenue nature. See, RNP में आप सब लिखोगे चाहे इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, बट जब आप आरएनपी के ऊपर से जो बेसिक सम आपको पूछते हैं वो ऐसा पूछते हैं कि आरएनपी दिया हो गया, एडजस्टमेंट दिए होंगे, ऊपर से आपको आईएनई बैलेंस शीट बनाना है, तो आरएनपी में तो कैपिटल नेचर भी होगा एंड रेवेन्यू नेचर भी होगा एज वी डिस्कस्ड। रेवेन्यू नेचर वाले सारे ट्रांजैक्शंस हम लिखेंगे आईएनई में, और कैपिटल नेचर वाले सारे ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। सो से फॉर एग्जांपल आपके आरएनपी अकाउंट के डेबिट साइड 10 एंट्री है, से फॉर एग्जांपल 10 एंट्री में से 6 एंट्री रेवेन्यू नेचर एंड 4 एंट्रीज कैपिटल नेचर। तो 6 एंट्रीज हम लिखेंगे आईएनई में एंड 4 एंट्रीज हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। सो इन आईएनई यू कैन सी दैट we have to write only revenue nature, only of current year, and it will be an accrual concept or a matching concept. When I say it is on accrual or matching concept, means I need to do the adjustment of outstanding and prepared. Either is my expenses or it is my income. And last, if you say last two line of this PPT, profit is known as surplus, loss is known as deficit. Surplus means excess of income over expense, and deficit means excess of expense over income. And this surplus deficit, as usual, directly transferred to balance sheet. It will be either added or minus from the capital fund. Done, guys? Right? Now let's move to the module. Next point. Okay. This is INE, and as we discussed, it is only of current year. And when we talk about the only of current year, then we need to have adjustment of outstanding and prepaid, and it is accrual and matching concept. Maximum there are 4 adjustments. Now friend, main source of income. Now guys, generally this is happens that this type of NPO do not sell, मतलब वो बिजनेस एक्टिविटी करते नहीं है, तो उनके पास फंड कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, तभी खर्चे कर पाएंगे। सो मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब पहले एग्जांपल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, education societies, library societies. So these are the basic example of the NP. Right? Now balance sheet. As you know guys, in balance sheet, capital is known as capital fund. Okay? Format does not have major changes. Balance sheet format does not have major changes. So guys, this is the format of balance sheet. We will start with capital, that is capital fund. Surplus will be added, deficit will be minus. Entrance fee, life membership fee and legacy हम सीखेंगे अभी मॉड्यूल में। तो ये तीनों तीन आपके कैपिटल रिसिट्स है, उनको कैपिटल फंड में ऐड करने चाहिए। अगर डोनेशन मिला है कोई स्पेसिफिक फंड के लिए, तो वो स्पेसिफिक फंड डोनेशन भी यहाँ कैपिटल रिसिट माना जाएगा। इट विल बी ऑन लायबिलिटी साइड and routine current liabilities. Sum fixed assets minus depreciation, routine investments and current assets. So ये बैलेंस शीट में आपके पास जो नई बात है वो 4 बातें हैं: एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी एंड डोनेशन फॉर
specific fund or a specific purpose. Else it is routine balance sheet. Now let's move to the module where step by step, one-to-one explanation. Now first income is donation. So as you know, there are some education institute, there are some association, there are some, trust, hospitals. उनका major inflow of income होता है various donation. Now donation has two types. Donation has two types, guys. Now if it is for general purpose, right? Then it is revenue receipts and it is part of income expenditure. And if it is for specific purpose, then it is capital receipt and part of balance sheet. सो अगर आपको लिखा है कि डोनेशन रिसीव्ड सिर्फ इतना लिखा है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर है, हो जाएगा आईनी में क्रेडिट साइड. अगर स्पेसिफिक पर्पस है देन इट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट. If the donor have declared specific intention, then they are part of capital fund and they are part of balance sheet. Donation for specific purpose or donation for general purpose. Okay. Second is a entrance fee or a admission fee. Now, entrance fee, admission fee, it is either capital or revenue. Depend के क्वेश्चन में लिखा क्या है. अगर कुछ नहीं लिखा, if the question is silent, then always take it to capital receipt and it is transferred to capital fund. Generally आपको सब में बोलेंगे कि भी एंट्रेंस फी को आप हाफ ले जाओ, रेवेन्यू में हाफ ले जाओ, कैपिटल में 1/3 2/3 कुछ बोलेंगे. अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है then it is always part of capital receipt and it will be added to capital fund. Subscription, as you know, it is our routine income. It is always part of income expenditure account. Life membership fee, absolutely clearly mentioned. It is our capital receipt and directly added to the capital fund because it is of non-recurring nature, right? It is of non-recurring nature. Life membership fees, it is only one time in the entire life. Therefore, it is part of capital receipt and added to the capital fund. Donation we discussed, right? Here also one more time they have discussed. Specific purpose, it is part of balance sheet. Other, it is part of I. Entrance fee, we discussed, guys. If nothing specified, it is part of balance sheet. Else, follow the instruction given in the question. Legacy. It is an amount received by an organization as per the will of the person after his death.
and it is a capital receipt. It is part of balance sheet. सो बहुत क्लियर लिखा है, नो मोर डिस्कशन रिक्वायर्ड के अनफॉर्चुनेटली जब किसी का डेथ हो जाता है और जब उसके विल के हिसाब से कुछ पैसा किसी हॉस्पिटल में, किसी ट्रस्ट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिया जाता है एज पर विल, इट इज लेगेसी. इट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग नेचर. लाइफ में एक ही बार डेथ होता है, एक ही बार विल का पैसा आता है, एंड therefore it is added to the capital fund. Life membership we have just discussed. It is always part of capital receipts and added to the capital fund balance sheet liability side. Endowment fund, once again, it is for the specific purpose, and when it is for the specific purpose, it should be added to the बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और उसको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा एंडोमेंट फंड, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. नाउ प्लीज, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट. अगर कोई भी इनकम आ रही है तो उसको यहां हम ऐड करेंगे. सो याद रहे कि जब इस टाइप का कोई भी फंड होगा, एंडोमेंट फंड, तो गाइस प्लीज रिमेंबर केयरफुली, कोई भी अगर इस टाइप का एंडोमेंट फंड होगा, डोनेशन होगा, तो मैक्सिमम कितनी बात आएगी, उस फंड का ओपनिंग बैलेंस प्लस उस फंड में एडिशन माइनस उस फंड का कोई यूज हुआ है तो प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड, और जो बचेगा गाइस, दिस इज नोन एज ए क्लोजिंग बैलेंस. और अगर हमने ऐसे एंडोमेंट फंड का कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट यहां असेट साइड, दिस इज योर लायबिलिटी साइड, दिस इज योर असेट साइड, जिसका हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, राइट गाइस. तो हमें उसको सामने अलग से दिखाना है, एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट इफ एनी. एंड important part, now please write it very carefully friend, please write it very carefully that ये जो तीन बातें आपने यहां लिखी है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जो इस फंड में डोनेशन रिसीव हुआ, जो इस फंड का इंटरेस्ट आया, और जो हमने इस फंड में से कोई भी खर्चा किया, यूज किया, वो कभी भी आईनी में जाते नहीं है, बिकॉज देयर आर ऑफ द पार्ट ऑफ एंडोमेंट फंड, वो फंड में ऐड होंगे, आईनी में बिल्कुल जाते नहीं है. सो दिस ऑल दिस थ्री never part of INE because it is part of specific fund. So गलती से भी ये तीन बातें आईनी में नहीं लिखनी है. से फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइस फंड बनाया है, राइट, आगे कहीं पर एक सब में आता है, तो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस, प्राइस फंड के लिए कोई और डोनेशन आया, अब वो फंड में से आपने प्राइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किए, और प्राइस फंड का जो इन्वेस्टमेंट बनाया था उसका इंटरेस्ट आया, तो देयर आर डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइस फंड, prices distributed expenses of the price fund, and interest on investment of the price fund. अब ये डोनेशन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आर एडेड एंड डिडक्टेड in the price fund, and therefore there should be not a duplicate effect, and therefore this three will not part of INE.
This is what I want to convey. Hope it is clear, guys, right? Now, friend, honorarium. Guys, honorarium is nothing but you can simply say it is one type of salary. It is nothing but one type of salary. Now, friend, preparation of opening balance sheet very clear. If capital fund or accumulated surplus in the beginning is not given, then we need to prepare opening balance sheet. Then we need to prepare opening balance sheet. Now, friend, uh, 6, 7 is a purely question of subscription. 6 is little bit easy that you can do, right? But 7 is a spatial sum in which you are given number of members. Now, friend, sometimes institute ask specifically to prepare membership subscription account, right? Or in a long questions when there are so many adjustment of subscription, either as we discussed earlier, you can do the adjustment in RNP or INE itself regarding outrunning of current year plus previous year minus prepaid of current year previous year 4 5 adjustment you can do in RNP or INE itself, or you can prepare separate ledger of membership subscription. So sometime it is asked separately, specifically, right? So it is important to understand the format of subscription account. Now, before sharing the format of subscription account, which needs to be prepared many times separately, point to be noted is, remember guys, this as you know, we are preparing in the books of NPO. मान लो कोई क्लब है, एसोसिएशन है, उसके बुक में हम बना रहे हैं RNP, INE and balance sheet. Now, say for example that association and club has 100 members. Now they are getting some annual subscription from that 100 members annually, और जो उनके पास सब्सक्रिप्शन आता है उसमें से वो मेंबर्स के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज या तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करते हैं. So for NPO, for that particular trust or organization or a club, subscription is a major income. Donation is a secondary income. So you can first understand very clearly. Don't mug up. वो नहीं चलेगा, ठीक है सीए में. बहुत सिंपल बात है कि वो ट्रस्ट के लिए या तो वो एसोसिएशन के लिए, वो क्लब के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स है और जो उनको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं वो उनके डेटर्स है. तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट मींस डेटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एनपीओ. अगर ये बात क्लियर होगी तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाए, राइट? सो नाउ आई एम शेयरिंग गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, दैट इज फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन. Now friend, so first please keep in mind this is like a debtors, and debtors का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड.
सो डेटर से हमें हमेशा पैसे लेने के बाकी होते हैं, मतलब रिसीवेबल्स होते हैं, राइट? सो ओपनिंग बैलेंस, एज यू कैन सी ऑन डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कितना पैसा लेने का बाकी था ओपनिंग में और कितना पैसा लेने का बाकी था क्लोजिंग में। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइक अवर डेटर्स। लेकिन अगर भाई साहब ने पैसे एडवांस में दे दी तो इट विल बी ऑन ऑपोजिट साइड। सो नाउ यू कैन राइट ऑन क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल में एडवांस दिया तो वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा, बराबर क्रॉस में जहां मेरा कर्सर है गाइस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। So guys, there are four maximum opening and closing, right? अगर आउटस्टैंडिंग है तो डेबिट साइड ओपनिंग है, और अगर एडवांस आया हुआ है पिछले साल में तो क्रेडिट साइड ओपनिंग है, और ये दोनों के बराबर क्रॉस में उनका क्लोजिंग बैलेंस। तो आपके दो ओपनिंग हो गए और आपके दो क्लोजिंग हो गए। सिंपल गाइस, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो डेबिट साइड है, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो वो क्रेडिट साइड है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओपनिंग बैलेंस, और बराबर क्रॉस में उनका क्लोजिंग होता है, आइदर इट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और इट इज क्लोजिंग एडवांस। नाउ एज यू नो कि डेटर को जब हम सेल करते हैं तो हम डेटर को डेबिट करते हैं। क्यों? बिकॉज हमें उतना पैसा उससे रिसीव करना है। यहां पर हम उनको डेबिट करेंगे हमें उनसे कितने पैसे रिसीव होने चाहिए। मान लो कि हम एन्युअली उनसे 10,000 रुपए लेते हैं, तो 10,000 यहाँ डेबिट करूंगा और आईने में दिखाऊंगा कि हमें आपसे इतना पैसा रिसीव करना है। और सामने क्या दिखाएंगे? कैश एंड बैंक रिसीव्ड, भाई साहब ने जितने पैसे दे दिए वो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड। तो अपार्ट फ्रॉम टू ओपनिंग एंड टू क्लोजिंग देयर आर ओनली टू एंट्रीज, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की एंट्री हमारी सेल्स की एंट्री, हम क्या एंट्री करते हैं? डेटर्स टू सेल, डेटर्स को डेबिट करते हैं, राइट? यहां हम डेबिट करेंगे विथ आईएनई। आईएनई मतलब इनका जो सब्सक्रिप्शन ड्यू होगा इस साल का, उससे हम उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट साइड लिखेंगे हमारी रूटीन डेटर्स कलेक्शन की एंट्री, कैश टू डेटर्स, जो आपने सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में बहुत बार पास की होगी, राइट? कैश टू डेटर्स, कैश में डेबिट करेंगे, डेटर्स में क्रेडिट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है? बाय कैश एंड बैंक। और वो एंट्री कैश एंड बैंक की मतलब कहां से आएगी? इट विल बी फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सो मैक्सिमम गाइस देयर विल बी 6 एंट्रीज, दो ओपनिंग, दो क्लोजिंग, एक आईएनई और एक आरएनपी। मैक्सिमम देयर विल बी 6 एंट्रीज। So this is the format of subscription. Can we go further, guys? Okay. Now, friend, let's move to the module. So 6 you can do at your own, guys. 7 is also not that much difficult, but see, from the following information, calculate the amount of subscription outstanding for the year 31st March 22. Okay. So as we discussed, we need to prepare INE account. Members
subscription account, debit and credit. Now, friend, as we discussed, first let's put the six basic amount which is part of this opening balance, that is outstanding of previous year, closing balance, that is outstanding of current year, opening balance, advance of previous year, closing balance, advance of current year, to income expenditure account by receipts and payment account. यहां पर क्या होता है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड कैश और बैंक received in current year. So guys, this is the maximum 6 entries which we are supposed to write. Maximum 6, right? So first, if this format is clear, then we need to just write the amount. Okay, guys. So first of all, guys, a club has 350 members, each paying annual subscription of 1050. Okay. Sorry. So 350 into 1050, it is a due subscription. इतना पैसा मिलना चाहिए. Here it is, 367500. So it is due subscription. We need to receive. Now, friend, your previous year is 2021, previous year, and your current year is 2022, right? Okay, the RNP account, this is subscription due. Now, RNP account, how much cash received? 4,10,000. This is cash received. Now, outstanding of 21, opening balance. These two are advances. These two are advances, 22 and 21. This is part of here, right? And 21 advance is part of here.
right? And now remaining is your balancing fee. So this is your balancing fee. Right, guys? So yours, it's a answer. Okay. Now, friend, this is the practical question number 3. फ्रेंड्स, जो आपने देखे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें जो सम्स करवा दिए हैं, तो वो तो आपने वहां देख लिए और अब देख भी सकते हो। तो जो शायद एक आध सम वहां से करेंगे, डोंट वरी, बट एक आध सम वो भी कर लेते हैं जो वहां पर मैंने इंक्लूड किए नहीं है, तो आपके ऑलमोस्ट सारे सब एक एक करके हो जाएंगे, राइट? ओके, so what is given, guys? This is summary of R&P, right? Summary of R&P is here. These are some of the opening balance. These are some of the closing balance. Okay. What we are supposed to prepare? You are required to prepare RNP and INE for the year ended 31st 12 22 and balance sheet of 22. Now, friend, this all, if you see this all summary is there. If I want to prepare the RNP from this, then first I need to decide which is my receipts and which is my payment. So in a very simple way, I can say opening balance is 8,000. Subscription my receipts 50,000. Donation raised to meeting what is written revenue expenditure. So it is my in RNP we need to write everything 15,000.
Interest on investment at the rate 9% is 9,000. My interest is income. Payment for medicine supply is my expense. Doctor salary is my expense. Salary is my expense. Salary expense is my expense. Asset purchase is my payment. Charity show expenses is my expense. Charity collection is my income. Is my income. So in a broader way, all receipts are on receipt sides and all payments are on payment side. So guys, if you see this, five amount on receipt side, six amount on payment side. As we have mentioned here, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And this is your closing balance. Now, friend, we need to prepare INE always from this RNP account only. The rule is very simple. We will prepare INE from this RNP only. So expenses and income, and after INE, we need to prepare balance sheet also. So INE, you need to prepare always both simultaneously liability and assets. Liabilities and assets. And friend, if you see the question, okay, this opening and closing you are given, but in this opening and closing, you are not given the capital fund. And if you are not given the capital fund, then we need to prepare opening balance sheet also, as we discussed many times, right? So here we need to prepare opening balance sheet also. So this balance sheet is of 22 and the last balance sheet is of 21. 20. And our purpose is to find capital. Now it is always easy. It is always easy to prepare opening balance sheet
very easily, just to, because in exam you have to earn the marks in a very short time. So it is always very much easy to prepare this balance sheet first of all. Now what we will do, see, the easiest way is to do this. Whatever you are given, whatever opening balances, right? So subscription due means your asset, right? Advance is your liability. Stock of medicine is your asset. Amount due for medicine supply, मतलब your creditors, liability. Value of equipment is your asset. Value of building is your asset. And don't forget this 8,000 also your asset. And जो क्लोजिंग बैलेंस था वो लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट. So what first we should do, guys? So you can see there is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 assets है वहां पर एंड 2 liabilities है. समझ में आया गाइस? हम इसकी बात कर रहे हैं अभी. Understood, guys? So there are 5 assets and 2 liabilities. What we will do, first put it on the opening balance sheet. Important point here in this question is, which sometimes students miss. Now this interest on investment is at the rate 9%. It is 9,000. अगर आपको इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए ना, अदरवाइज इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? अब आपको ये पता है कि सर मुझे जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो भी है, इंटू 9% किया तो सर मुझे 9,000 का इंटरेस्ट मिला. तो जाहिर सी बात है कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तो इंटरेस्ट मिला ना गाइस. तो अगर 9% इंटरेस्ट 9,000 हो रहा है, इसका मीनिंग आप ऐसा समझ सकते हो बहुत इजीली कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 होनी चाहिए. क्लियर गाइस? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 होनी चाहिए. सिंपल, राइट? ओके. सो ये आपका एक हिडन एडजस्टमेंट है जो क्लियर कर दिया नहीं, राइट? सो 1,00,000 इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज योर एसेट, isn't it guys? It is also your asset. सो अब आपके एसेट जो 5 थे उसकी जगह मैं 6 लिखूंगा गाइस. गॉट इट? बिकॉज अब आपके एसेट्स 6 हो गए, इन्वेस्टमेंट आएगा ना एक और एसेट. मतलब जब हम आंसर देखेंगे गाइस तो 6 एसेट्स होने चाहिए और 2 लायबिलिटीज होनी चाहिए और अमाउंट ये वाली होगी, ओपनिंग वाली, राइट? लेट्स मूव टू दी आंसर फर्स्ट नाउ. Okay, so we discussed there should be 6 assets and there should be 2 liabilities. Balancing figure, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 डिस्कस कर लिया हमने गाइस. यहां तक पॉइंट क्लियर? ओके, क्लियर गाइस? अब ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है सीएफ, एज यू नो, वो यहां पर जाएगा जो हमने लिख दिया गाइस.
It is part of the opening balance sheet. It is part of the opening balance sheet. Now, friend, now, what is the next smarter we are supposed to do? अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी अमाउंट लिख दी है. Now let's move to the same smart work in a closing balance sheet. In a closing balance sheet. Okay. अब ये जितने भी आपके अमाउंट है क्लोजिंग वाले, राइट, वो सारे जाने चाहिए इन ए क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, जितने भी दिख रहे हैं सारे जाने चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट. थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है गाइस, सिर्फ ध्यान रखना है फिक्स एसेट में. और यू नीड टू डू दिस स्मार्ट वर्क इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. तो अभी हमने 6 एसेट्स लिखे और 2 लायबिलिटी लिखे. वही 6 एसेट्स एंड 2 लायबिलिटी हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में. अमाउंट आएंगे क्लोजिंग वाले. वेरी सिंपल. हाँ, एक ध्यान एक ही जगह रखना है, राइट, जो यहां पर रखना होता है. सी, अगर आप ये यहां पर देख रहे हो तो इक्विपमेंट जो है गाइस, उसमें अमाउंट चेंज है. ओके, सी, यहां देखना है. इक्विपमेंट जो है 21,000 के ओपनिंग थे, 30,000 के क्लोजिंग. इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि इक्विपमेंट कुछ परचेज किए, राइट, एंड बिल्डिंग में 50,000 का हो गया है 48,000. मतलब आइदर इट में बी डेप्रिसिएशन और इट मे बी सेल ऑफ बिल्डिंग. दोनों में से कोई एक बात होती है, राइट. ओके, ऊपर जो हमारे पास रिसिट्स पेमेंट है गाइस, ओके, वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है इक्विपमेंट परचेस इज 15,000, इज 15,000, राइट. अब ये इनके अलावा बिल्डिंग का या इक्विपमेंट का कोई सेल बोला नहीं. सो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ फ्रेंड, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एसेट्स है वो आपको इनर कॉलम में लिखने हैं, राइट. ये जो एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस है वो आपको अंदर वाले कॉलम में लिखने. ओके, बाकी ये जो सब्सक्रिप्शन स्टॉक और ये सप्लाई ऑफ मेडिसिन, वो सारे आउटर कॉलम में लिखने. सो आप ये 6 अमाउंट को ध्यान में रख के मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस शीट में क्या स्मार्ट वर्क करना चाहिए. ओके, मैंने जो राउंड की है दैट यू विल बी राइटिंग इन ए इनर कॉलम प्रॉपरली. और जो राउंड नहीं किए, मतलब ये जो मैं टिक कर रहा हूं, ये 1, 2, 3, 4, ये चारों चार अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहा लिखोगे? आउटर कॉलम में लिखोगे, राइट. सो सब्सक्रिप्शन is your asset, advance is your liability, stock is your asset, amount due for your medicine is your liability. So there are 2 assets, there are 2 liability, वो जाएंगे सीधे आउटर कॉलम में. और ये जो है वो हम लिखेंगे इनर कॉलम में, राइट फ्रेंड. सो आई एम गोइंग टू दी फाइनल बैलेंस शीट ऑफ क्लोजिंग, दैट इज 31/12/22. ओके, 31/12/22 मैं वहां पर जा रहा हूं और 4 अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में दिखाऊंगा आपको और इक्विपमेंट बिल्डिंग दिखाऊंगा आपको इनर कॉलम. एंड गाइस, दिस इज अ स्मार्ट वर्क जिससे कम समय में ज्यादा मार्क आप ले सकते हो. ओके,
मैंने क्या बोला था गाइस, ये दोनों लायबिलिटी सीधे आउटर कॉलम में आएंगे, लिख दिए देखिए आप। मैंने क्या बोला था, वो दो एसेट्स सीधे आउटर कॉलम में आएंगे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सब्सक्रिप्शन। इन्वेस्टमेंट सेम है गाइस, ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं, राइट। और ये 1 लाख का जो आपने ढूंढा था क्लोजिंग बैलेंस, इट इज ऑल्सो योर एसेट, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, सो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी यहां पर आ गया सिंपल। और मैंने बोला था कि इक्विपमेंट बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे। देखिए आप, ये जो ओपनिंग बैलेंस थे ये वाले पिछले साल के, राइट। ओके, 1 जनवरी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। 50 एंड 21 मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं उनको, देखिए आप। 50 इज माई ओपनिंग बैलेंस, राइट। 21 ऑल्सो माई ओपनिंग बैलेंस। ओके, अब अगर बिल्डिंग की बात करें, देखिए बहुत सिंपल बात है। अगर बिल्डिंग की बात करें फ्रेंड क्वेश्चन में, तो बिल्डिंग 50 का 48 हो गया, देखिए आप, राइट। बिल्डिंग 50 का 48 हो गया। और ऊपर जो छोटा सा समरी है उसमें देखिए बिल्डिंग नाम का शब्द नहीं है, देखिए आप, ये समरी में बिल्डिंग नाम का कोई वर्ड तक नहीं। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, बिल्डिंग का ना तो परचेज है, बिल्डिंग का ना तो सेल है। क्लियर गाइस, ये समरी में मतलब रिसिप्ट पेमेंट में अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया होता तो वो दिया होता ना कैश बुक में, अगर बिल्डिंग सेल किया होता वो भी दिया होता कैश बुक में। लेकिन ना बिल्डिंग का परचेज है, ना बिल्डिंग का सेल है। अगर बिल्डिंग का परचेज सेल नहीं है तो ये डिफरेंस क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग में। यू नीड टू राइट वेरी क्लियरली गाइस कि कैश बुक में बिल्डिंग का कोई वर्ड तक नहीं है, मतलब ना बिल्डिंग का परचेस है ना बिल्डिंग का सेल्स है, राइट। देयर फॉर बैलेंस शीट में मेरे पास अगर कोई परचेस सेल्स ना हो फ्रेंड, तो आई हैव टू राइट ओनली माय डेप्रिसिएशन फ्रेंड। क्लियर, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट गाइस। सो दिस 2000 depreciation is hidden adjustment and closing 14, and this 2000 depreciation, don't forget to write in INE also, we will write there. Okay, so in your INE see debris is there, clear, debris is there. Okay, now let's move to the building, and then let's move to the equipment. Now equipment 21,000, then 30,000, right. 21 opening and 30 closing, guys यहीं से पता चलता है कि balance has been increased, balance has been increased. Okay, नाउ इफ बैलेंस हैज बीन इंक्रीज, देखो बिल्डिंग में तो बैलेंस कम हो गया, 50 का 48 हो गया तो डेप्री था। अब इक्विपमेंट में तो बैलेंस बढ़ा है 9,000 से, इसका मतलब कि वहां परचेज होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है गाइस, ऊपर परचेज दिया भी है 15,000 का। ओके, सो इन अ वेरी सिंपल वे, यहाँ कोई लंबा रॉकेट साइंस नहीं है। 21,000 ओपनिंग बैलेंस था, 21 आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपने 15 परचेज किया, तो आपके पास कितना होना चाहिए था एसेट, 36 का होना चाहिए था। लेकिन आपके पास है कितना, 30। आपके पास है कितना, 30। इसका मतलब क्या होगा गाइस, 6,000 का डेप्रिसिएशन। क्लियर गाइस, सिंपल, राइट। 21,000 का आपके पास ओपनिंग था, 15 आपने परचेज किया, 36 होना चाहिए, क्लोजिंग 30 दिया है तो 6,000 का डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ सी द प्रेजेंटेशन व्हाट दे हैव गिवन। सी, बिल्डिंग एंड देन इक्विपमेंट, सेम स्टोरी गाइस। देखिए
21,000 का ओपनिंग बैलेंस है, राइट। 15 आपने परचेज किए, ओके। कितना होना चाहिए? 36। दिया कितना है? 30। इट इज वंस अगेन हिडन एडजस्टमेंट, राइट, ओके। और डोंट फॉरगेट टू राइट 6,000 इन आईनी। क्लियर गाइस? गाइस ये दोनों एसेट के पॉइंट क्लियर हो गए गाइस? कैन आई गो फर्दर? आप मैसेज में लिख सकते हो मुझे। ये दोनों एसेट वाले पॉइंट क्लियर है गाइस? ओके, तो हम आगे उसको फ्रीज करें। थैंक यू फातिमा, थैंक यू राज। आई होप बाकी स्टूडेंट्स आर ओके विद दिस। यस अनुष्का, थैंक यू। ओके, नाउ फ्रेंड, अब देखो ये आपके आपने स्मार्ट वर्क करके क्या किया, और ये दिस इज व्हाट यू हैव डन द स्मार्ट वर्क गाइस। सर मैंने सारे ओपनिंग क्लोजिंग फ्रीज कर दी, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग मैंने बैलेंस शीट में लिख दी है, मतलब आपकी बैलेंस शीट 80% रेडी हो गई। थैंक यू श्री सत्यना, नाम मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ओके। अब हमें एक ही काम बचा है करने के लिए, जो हमने आरएनपी बनाया है हम उसको आईडी में लिख देते हैं, ओके। देखिए ये आपने आरएनपी बनाया है गाइस, और हमने इसकी इफेक्ट जो ले ली है वो रिपीट नहीं करेंगे, ओके। ये हमने लिख दिया है गाइस ऑलरेडी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया है, ओके। ये हमने क्लोजिंग में लिख दिया है, ये हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इनकी इफेक्ट देने की बाकी है। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड। नाउ व्हेन very simple to understand, this all will be transferred to income expenditure, income side, that is credit side, that is credit side, very simple. And this all will be transferred to income expenditure, debit side or payment side, debit side or payment side. Now friend, ये सब्सक्रिप्शन जाएगा आईनी में, डोनेशन भी जाएगा आईनी में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी जाएगा आईडी में, चैरिटी भी जाएगा आईडी में, मेडिसिन सप्लाई। नाउ फ्रेंड, दिस ऑल माय एक्सपेंडिचर जाएगा आईडी में, सैलरी जाएगा आईडी में, एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा आईडी में। ये मैंने बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख दिया है, राइट। ये गया बैलेंस शीट में, चैरिटी इशू एक्सपेंसेस जाएगा आईडी। पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो रेवेन्यू है वो सारे जाएंगे आईडी में, और जो कैपिटल है वो सारे जाएंगे बैलेंस शीट में। सो गाइस ये पूरी कहानी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देर इज ओनली वन इज बैलेंस शीट, दैट इज वी हैव ऑलरेडी रिटन, राइट गाइस। बाकी सारे हम लिखेंगे आईडी में।
राइट। यही एक बैलेंस शीट वाला है जो लिख लिया हमने। सो अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर। बाकी सब लिखेंगे आईडी में, बाकी सब लिखेंगे आईडी में। पहले ये क्लियर होना चाहिए कौन सा जाएगा आईडी में, कौन सा जाएगा बैलेंस शीट में। और इसके बाद एक लास्ट स्मार्ट वर्क करेंगे कि एडजस्टमेंट किस किस में है। ओके, सो इफ यू सी दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देयर इज ए adjustment in subscription and there is a adjustment in medicine, clear। so subscription and medicine में हम adjustment है, ये दोनों हमारे हो गए गाइस। equipment is over, building is over। so what I will do, सर जब मैं ये सब्सक्रिप्शन एंड मेडिसिन लिखूंगा तो मैं एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करूंगा, राइट। सो इन सब्सक्रिप्शन आई हैव एन एडजस्टमेंट, मेडिसिन आई हैव एन एडजस्टमेंट। गाइस बाकी किसी में एडजस्टमेंट नहीं, बाकी किसी में एडजस्टमेंट नहीं। सो सर डोनेशन आई कैन सिंपली राइट, इंटरेस्ट आई कैन सिंपली राइट, ओके। डॉक्टर्स I can simply write, salary I can simply write, sundry expenses and charity I can simply write, right। so donation, interest, doctor salary, routine salary, sundry expense and charity, guys मैं विदाउट एडजस्टमेंट लिख सकता हूं, राइट। सो जो मैंने टिक किया है 15,000, देखिए 15,000, 9,000, 10,000, 28,000, 1,000 we can write easily, right, and 1,500 this we can write easily, okay। देखिए आप सो देखिए डोनेशन 15,000 ये रहा, राइट। इंटरेस्ट 9,000, नो एडजस्टमेंट्स, आई कैन राइट वेरी इजीली, हो गया, ओके। फाइन। उसके बाद ये जो मैंने बताया 10, 28, 1 एंड 9, 10, 28, 1 एंड 9, राइट। वो सारे आपके एक्सपेंस। गाइस आपसे कुछ यहां हो रहा है प्लीज, या तो आप स्क्रीन को टच मत करो, हाँ वो कहीं ना कहीं सबको डिस्टर्ब कर रहा है फ्रेंड। हमारे पास वैसे भी वक्त कम होता है, तो मुझे नाम लिख के आ रहा है कौन कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट। आप सीए स्टूडेंट हो, टाइम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10, 28, 1 एंड 9, 10, 28, 1, ये सारे आपके 10, 28, 1 एंड 1,500। इन्होंने इन दोनों को एडजस्ट कर दिया आमने सामने। सो गाइस इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो सब हो गया, ओके। अब जहां एडजस्टमेंट है वही बचा, क्या बचा, एक सब्सक्रिप्शन और एक मेडिसिन। ना फ्रेंड सब्सक्रिप्शन 50,000 यू आर गिवन इन आरएनपी, और अगर देखा जाए सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड तो देयर आर 2 आउटस्टैंडिंग एंड 2 प्रीपेड। देखिए सब्सक्रिप्शन 2 आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन 2 एडवांस। तो अभी जो हमने फॉर्मेट बनाया था फ्रेंड उसी फॉर्मेट में बनाएंगे तो बहुत इजीली हो जाए,
Okay, two outstanding and two advance. Okay, so they have प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट. आप चाहो तो जो अभी हमने फॉर्मेट बनाया था गाइस, सेम तरीके से आप बना सकते हो. हमने क्या फॉर्मेट बनाया था सब्सक्रिप्शन में? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर, आईएनई की अमाउंट एंड आरएनपी की अमाउंट. दिस इज व्हाट वी हैव डन गाइस. ओके, सो आरएनपी अमाउंट जो आप देख रहे हो अभी आरएनपी में, दैट इज गिवन 50,000. ओके, आरएनपी जो आपने बनाया है अभी, ये रहा आपका आरएनपी. देखिए आरएनपी में कितना अमाउंट दिया है, 50,000 जो लिख दिया मैंने. अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, मैं उनको अपनी जगह लिख रहा हूं. देखिए देखिए आउटस्टैंडिंग कितना है, 1500 एंड 2200 आउटस्टैंडिंग है, एंड 1200 एंड 700 एडवांस है. ठीक है, ये चार अमाउंट जो है गाइस, ये जो मैं अब ब्राउन कर रहा हूं, ये चार अमाउंट लिख रहा हूं मैं अपने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में. राइट, ओके. 1500 2200 आउटस्टैंडिंग है, 1200 700 एडवांस है. ठीक है, देखिए फाइन. 1500 इज ए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर. ओके, 1500 पहला तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है. देखिए, ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक एक 22 का, एक एक 22 का एडवांस जो है वो 1200 है. ओके, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का एडवांस जो मैंने लिख दिया. अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2200 है. राइट, एंड करंट ईयर का एडवांस 700 है. 700. ओके, सो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो यहां पर टोटल आता है 51900. यहां भी आना चाहिए 51900. और दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. राइट गाइस, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. ये दोनों सेम ही होते हैं. राइट, नाउ गाइस वॉट एवर अमाउंट इज देयर, वो कहां पर आउटर कॉलम में जाएगा. देखिए ये रहा, दिस इज योर जो बैलेंसिंग फिगर है. दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. वो कहां पर जाएगा, सीधा आईडी, सीधा आईडी. और मैंने किसकी इफेक्ट लिखी है, मैंने यही इफेक्ट लिखी है, ओपनिंग क्लोजिंग वाली. दिस इज पार्ट ऑफ दैट.
मतलब ये चारों चार इज ओवर, हमने लिख दिए चारों चार, राइट। अब बात करेंगे फ्रेंड मेडिसिन। ये मेडिसिन वाला जो पॉइंट है गाइस, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मेडिसिन में आपको स्टॉक दिया है और क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है और आपको मेडिसिन सप्लाई मतलब मेडिसिन के क्रेडिटर्स दिए। ओके। और ऊपर आपको क्या दिया हुआ है मेडिसिन का, जो आरएनपी में दिया हुआ है, पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई। सो अगर आपने क्रेडिटर्स डेटर्स लेजर सीखे थे सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में, कौन से वाले चैप्टर में, सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में, वहां हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं जहां से हमें परचेज मिलता है और बाद में हम कंजम्पशन ढूंढते हैं, राइट गाइस। उसके बाद हम कंजम्पशन ढूंढते हैं। तो मेडिसिन का आपको सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 9,000 एंड 13,000। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे मेडिसिन का परचेज, और मेडिसिन के परचेज के बाद हम ढूंढेंगे मेडिसिन का कंजम्पशन। ओके। 9,000 क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है एंड 13,000 क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर creditors ledger and we will find out medicine purchase, medicine purchase in a working note. Now friend, इन्होंने ये बनाया है, हम डायरेक्टली बना सकते हैं मेडिसिन क्रेडिटर। ओके। 9,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 13,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। एंड 30,000 का हमने उनको पेमेंट किया, ओपनिंग क्लोजिंग, एंड ये किसकी अमाउंट है, आरएनपी की। 43,000, 43,000, 34,000, right? So 34,000 purchase of medicine. 34,000 is purchase of medicine. It is your creditors ledger. और अगर आपने सिंगल एंट्री चैप्टर किया हुआ है तो ये आपने हर एक समय बनाया हुआ है, ठीक है गाइस। और अब हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कंजम्पशन, राइट। So opening plus purchase minus closing equal to consumption. Opening plus purchase minus closing into consumption. And friend, important point is that the last important point कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में we need to show the consumption, right guys। आईनी में क्या लिखना होता है, परचेज नहीं, आई में लिखना होता है कंजम्पशन। सो व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल राइट हियर, दैट इन आईएनई वी नीड टू शो कंजम्पशन, परचेज नहीं दिखाना है, राइट। वी नीड टू शो कंजम्पशन। क्लियर गाइस, वी नीड टू शो कंजम्पशन, वी नीड टू शो कंजम्पशन। तो अभी देखिए आपका पूरा आईएनई खत्म हो गया है, आप एक बार प्रॉपर चेक कर सकते हैं।
आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम जा रहे हैं हमारे बैलेंस शीट के फाइनल स्टेज में। क्लियर गाइस? ओके। और अब गाइस नीचे देखिए आप, अब आपका जो सरप्लस आया वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, राइट? एंड देन योर बैलेंस शीट विल टैली। सिंपल। डन गाइस? और यहां पर ओके। डन गाइस? हाँ, चैरिटी एक्सपेंस आप लिख सकते हो, एक्सपेंस है, नथिंग रॉन्ग, इट इट इज ओके। सो दिस इज सब्सक्रिप्शन, जो पहले एक आध फिगर इधर उधर थी वो मैंने सही कर दी है टोटल के साथ।
सो गाइस इट वाज अ गुड क्वेश्चन जो मैंने आगे लिया नहीं था, वो मैंने अभी ले लिया है. So guys, we have last 20 minutes, which I can open for the question and answers. तो टेक्निकल टीम आप क्वेश्चन आंसर के लिए हम लास्ट 20 मिनट्स रख रहे हैं ऑलवेज. तो आप उनको अनम्यूट होके बोलने दीजिए, उनका जो भी क्वेरीज हो एक एक करके सॉल्व करेंगे. गाइस लास्ट 20 मिनट्स विच वी कैन कीप फॉर दी क्वेरीज. सो आप अनम्यूट होके क्वेरी पूछ सकते हो या तो आप लिख के क्वेरी पूछ सकते हो, बिकॉज लास्ट 20 मिनट्स वी कैन पुट फॉर दी क्वेरीज. So either guys, you can unmute yourself or you can write in your chat box regarding your queries. ओके, अगर आपकी क्वेरीज जब तक आ रही है तब तक मैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखा देता हूँ गाइस. अगर आपकी क्वेरीज आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इट इज इन इलस्ट्रेशन नंबर 8. ओके, नाउ गाइस आपको यहाँ पर है ना पासबुक का बैलेंस दिया है. देखिए ये दोनों बैलेंस किसके हैं? पासबुक के हैं. ओके, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा सब है. ये पासबुक के बैलेंस है. इवन इफ यू सी द क्लोजिंग बैलेंस, इट इज ऑल्सो पासबुक. तो गाइस ये बैलेंसेस आपके काम के नहीं है, बिकॉज जब हम अपने बुक्स में लिखेंगे तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, मतलब आपको रिकंसिशन करना पड़ेगा. और आप यहां देखोगे तो दिस इज द एंट्री ऑफ बीआरएस, राइट. दिस इज द, ये जीरो है. दिस इज द एंट्री ऑफ बीआरएस. सो गाइस ये वाले सब में जब आप क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो आपको इनका प्लस माइनस करने के बाद वाला अमाउंट लिखना है. ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूं. अब ये जो ये जो है, इट विल अफेक्ट योर करंट अकाउंट, राइट, एंड दिस विल अफेक्ट योर डिपॉजिट अकाउंट. ओके, नाउ फ्रेंड, करंट अकाउंट, you are given balance as per passbook. Okay, opening and closing, opening and closing. How much balance you are given for opening balance and closing balance as of current account? 600 and 150, right? 600 and
150. I'm talking about current account, right? 600 and 150. Now this checks are, what is written, guys? Check unpresented. It means we can say check issue but not presented in passbook. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन पासबुक, अभी तक पासबुक में प्रेजेंट हुए नहीं। तो जब गाइस ये पासबुक में प्रेजेंट होंगे तो ये बैलेंस को हमें कम करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज पैसे जाएंगे पासबुक में से 300 and 260। तो गाइस इसको बोलेंगे सही वाला बैलेंस। सो दिस इज बैलेंस एज पर कैश। तो आपने जब बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, देखिए आप सो 110 का ओवरड्राफ्ट जो माइनस में फिगर आया था, और 300 का बैलेंस। ठीक है, ये कहां से फिगर आई? तो बीआरएस में था। ये रही फिगर, देखिए आप। ओपनिंग में कितना दिखाना है आपको? 300 दिखाना है, और क्लोजिंग में कितना दिखाना है? -110 दिखाना है। ठीक है, बिकॉज कैश बुक में तो माइनस हो चुका है। जब आप चेक इश्यू करोगे तो कैश बुक में से माइनस हो चुका है, तो पासबुक में से माइनस करना चाहिए। यस, क्लियर गाइस? देखो देखिए कहां दिखाया, 300 ओपनिंग में, 110 क्लोजिंग में। देखिए 110 क्लोजिंग में, ओवरड्राफ्ट माइनस में इसलिए, और 300 मेरा इधर आएगा, राइट? अब सेम स्टोरी बात करेंगे सेविंग अकाउंट के लिए, मतलब डिपॉजिट अकाउंट के लिए। डिपॉजिट अकाउंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बैलेंस एज पर पासबुक। अब कितना दिया हुआ है पहले आपके क्वेश्चन में? डिपॉजिट का 2230 ओपनिंग है और 3090 क्लोजिंग है। ठीक है, 2230 ओपनिंग है, 3090 क्लोजिंग। अब बीआईएस की एंट्री क्या है फ्रेंड? बीआईएस की एंट्री देखिए आप, इंटरेस्ट क्या लिखा है? नॉट येट एंटर्ड इन, कहां लिखा है? पासबुक। पासबुक में अभी तक ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है फ्रेंड, राइट? इंटरेस्ट yet to be recorded in पासबुक। ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, देखिए डैश है, क्लोजिंग में 20 है। इससे मेरा बैलेंस बढ़ेगा बिकॉज मेरी इनकम है ये, राइट? तो फिर ये सेम रहेगा और ये बन जाएगा 3110। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए आप, 2230 ओपनिंग में लिया होगा उन्होंने, देखिए देखिए 2230 ओपनिंग में लिया हुआ है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा ना 3110, राइट? दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो उनका अमाउंट आ जाएगा 3110। इस तरीके से आपको बैलेंस सही दिखाना है। ओके,
हेलो सर। और इंटरेस्ट में देखिए ऐड करना पड़ेगा आपके आईडी में, आपके आईडी में इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा किसका है, रिपेयर। रिपेयर का खर्चा हमारा किधर है, देखिए रिपेयर। रिपेयर का 500 का खर्चा यहाँ आपका आरएनपी में दिया हुआ है, और ये 300 और 260 एडजस्टमेंट करने के बाकी है गाइस। ओके, 300 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और 260 करंट का आउटस्टैंडिंग है। तो ये फिगर किधर से आई, ये क्लैरिफाई यहाँ कर लेना पड़ेगा। देखिए ये जो रिपेयर आया ना फ्रेंड, रिपेयर किधर से आया, तो हमारी फॉर्मूला क्या होती है, आर एन पी प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। इस तरीके से अमाउंट आया, 460 ऐसे आया है। ठीक है, ये आपका 300 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, 260 करंट ईयर का। देखिए 260 प्लस 300 माइनस, और 500 मेरा आईडी का आरएनपी का अमाउंट दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, बताइए। हेलो सर। हेलो। यस फातिमा, बोलिए आप। सर मेरे को दो डाउट थे, एक ये चैप्टर से है और एक बीआरएस से है। हाँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जी सर। और इसमें ना नॉर्मल आईसीआई क्या करता है, जैसे पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री जो सिमिलर रहती है वो एक साथ इनकम में कर देता है या एक साथ एक्सपेंडिचर में कर जी देता है। जी हम जी। उसे अलग अलग कर सकते हैं ना? देखो अलग अलग करोगे कि आप आमने, जैसे हमने चैरिटी एक्सपेंस किया, तो आप आमने सामने लिखोगे तो भी आंसर विल रिमेन सेम, दोनों बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन क्या होता है जब हम टोटल करते हैं तो आईसीआई का और हाँ, हमारा टोटल अलग अलग आता है पर तो अगर, बैलेंस सेम रहता है। हाँ तो बेटर है कि आप आईसीआई की तरह नेट ऑफ कर दो, तो उनके हिसाब से आपका मैच हो जाएगा। तो अगर वैसे भी करेंगे तो कोई अगर मार्क्स तो नहीं कटेगा ना पेपर में? नहीं देखो, अब आपको पता है कि कई जगह सॉफ्टवेयर पेपर चेक करते हैं, राइट। यस सर। थोड़ा सा एआई बेस्ड हो चुका है, हाँ तो हो हाँ। सके उतना हमें इंस्टीट्यूट की तरह दिखाओगे तो थोड़ा सा हमें प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा। जी जी। ठीक है। और ना ये एमटीपी आया था ना फर्स्ट वाला, उसमें डाउट था मेरे को। वो जो पहले बीआरएस के दो, बस हाँ हाँ, इसमें इतना ही था। हाँ कोई बात नहीं। तो बाकी गाइस, अगर आपके कुछ इसमें डाउट है तो मुझे बताइए, बाकी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इनके एमटीपी वाले डाउट्स लेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास और 9 मिनट है। बाकी पार्टिसिपेंट्स, एनी डाउट, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, बिकॉज दिस इज रिवीजन सेशंस। रिकॉर्डेड तो आपने देख लिए होंगे साइट पे से। तो ये सेशन में हमारा कंसर्न ये है कि हम आपके डाउट सॉल्व करें रादर देन फिर से पूरा पढ़ाएं, बिकॉज मोर इंपॉर्टेंट इज डाउट क्लियर। तो फिर मुझे एमटीपी करनी पड़ेगी ना, डाउनलोड, फातिमा।
यस सर, अगर आप, मैं खोल के रखी, ओपन करके रखी हूँ मैंने। अगर आप शेयर अगर कर दो आप, तो शेयर शेयर कर दो। अगर टेक्निकल सपोर्ट अगर आप वहां पर है तो मैं शेयरिंग बंद करता हूँ, इनका शेयरिंग शुरू करिए प्लीज। सर पर मुझे आता नहीं है ना कि कैसे शेयर करना। क्या बोल रहे हैं सर आप, अशोक भाई? हाँ तो उनको बता दो ना कैसे करेंगे। तो मतलब मुझे करना पड़ेगा? ठीक है चलो, तो मैं एक बार अपने हिसाब से डाउनलोड करके कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस सर। मॉक टेस्ट पेपर में है ना वो? यस सर, मॉक टेस्ट पेपर है, फर्स्ट सीरीज है। फाउंडेशन मॉक टेस्ट सीरीज 3 लिखा है। नहीं, फर्स्ट भी है ना, नीचे आप देखेंगे तो फर्स्ट भी बताएगा। जून 2024 लिखा हुआ है। हम्म, मैं मॉक टेस्ट में तो गया हूँ, लेकिन अभी मुझे दिखा रहा है फाउंडेशन मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 3। सीरीज 2 एंड 3 दिखा रहा है। एक सेकंड। वो मॉक टेस्ट मैं जा रहा हूँ उसमें, तो मुझे वही दिखा रहा है, मुझे सीधा 3 दिखा रहा है। सर वो आईसीआई बॉस पे क्लिक करने के बाद आता है ना, उसमें वो फिल करना पड़ता है कि फाउंडेशन है क्या है। मेरे पास वैसे ही आता है इसलिए। बीओएस पोर्टल में जाना पड़ेगा ना पहले? हाँ, पहले बीएस पोर्टल पे मैं जाना पड़ेगा। उसमें गया, बीओएस पोर्टल में आया, उसमें नीचे ऑप्शन आए होंगे आपके पास ऐसे। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज। स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, ऐसा ऑप्शन दिया होगा नीचे, हाँ मैंने हाँ आपको। मैं और आप बहुत आईसीआई बॉस पोर्टल पे क्लिक करिए ना एक बार। हाँ उसी पे गया मैं, बीओएस आईसीआई हम्म। बीओएस लाइव पोर्टल, उसी पे गया मैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन रीड करूँ तो। हाँ बोलो, आप बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। इसमें कितनी एंट्री है, बहुत सारी एंट्री में, जो एंट्री में डाउट है मैं वही पूछने हाँ वो वाली हूँ। एंटी में डाउट ही पूछो आप। Out of 82,000 paid in by Miss Tina in cash and by check on 31st March 2024, check amounting 30,000 were collected on 7th April. हम्म। हाँ तो मुझे बताओ, बीआरएस कौन सी डेट का बनाना है? 31st March 2024। हाँ तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने जो 32 वाली अमाउंट बोली, वो मार्च में कलेक्ट नहीं हुई। हाँ। और बीआरएस में हम क्या लिखते हैं कि डू व्हाट इज What नॉट is डन। not done? हाँ हाँ, हाँ। जो कलेक्ट नहीं हुआ वो लिखना है। तो 32, सी 32 अप्रैल में हुआ, मतलब मार्च में नहीं हुआ। यस सर। तो आपका आंसर आएगा 32,000। और वो कौन किस में जाएगा? चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, 32,000 करना है आपको। अच्छा, और जैसे अगर अब 1st अप्रैल या दूसरे डेट में रिसीव होता तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। कोई भी डेट, अगर मान लो कि
31 मार्च के बाद का कोई भी डेट दिया है, हाँ। इसका मतलब कि वो उस महीने में कलेक्ट हुआ नहीं है, नहीं है। हाँ। तो हमें मार्च में उसकी इफेक्ट दे देनी है। नहीं देना है ना मतलब। देनी है, 32 की देनी है। अच्छा, तो इसमें एक और एंट्री है। अ चेक ऑफ 4,320 credited in the passbook on 28 March 2024 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15 April. हाँ, मतलब ये क्या हुआ कि ये पूरा मामला क्या डिसऑनर का है, तो यस मतलब सर। डिसऑनर की एंट्री पासबुक में 1 अप्रैल में हुई, राइट? यस सर। मतलब मार्च के बाद में हुई, हाँ हुई। और कैश बुक में तो हुई ही नहीं है, हाँ। तो मतलब दोनों जगह नहीं हुई है। हाँ, दोनों जगह नहीं हुई तो है। आपको लेने की जरूरत ही नहीं है बीआरएस में। बीआरएस में हम कौन सी एंट्री लेंगे, जो एक जगह हुई और एक जगह नहीं हुई। ओके। हाँ, इसीलिए ना दो जगह डाउट हुआ मेरे को। ऐसे बुक में था क्वेश्चन तो उसमें हो रही थी और उसमें नहीं हो रही थी। हाँ, तो मैं देखो दोनों में ये कंफ्यूज हो गई। एग्जैक्ट ये जो आपने बोला ना, उसमें क्या हुआ, पासबुक में 1 अप्रैल में हुई और कैश बुक में तो हुई ही नहीं है, हाँ। तो दोनों जगह नहीं हुई तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सपोज अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि 29 मार्च को ये एंट्री हो गई है हाँ पासबुक बुक में, हाँ, तो और कैश पासबुक बुक में में नहीं हुई है तो हम तो करते। यस एग्जैक्टली। और एक और है। आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग 31,200 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 March 2024, अ चेक फॉर 10,000 वॉज इन कैश ऑन 3rd April। हाँ, तो मतलब ये 30 अप्रैल को हुए, मतलब मार्च में नहीं हुए। हाँ, मतलब वो ड्रॉन तो की ना, मतलब 27 हाँ, मार्च को। जॉन मतलब चेक इश्यू हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिए, हाँ। कैश बुक में पूरे क्रेडिट किए 31, जो भी आप अमाउंट बोले वो। हाँ। लेकिन उसमें से जो आप दूसरी वाली अमाउंट बोले, कितनी बोले दूसरी वाली अमाउंट? 10,000। हाँ, 10,000 वो मार्च में नहीं हुए पासबुक में, लेकिन अप्रैल में हुए। अप्रैल। हाँ, अप्रैल में हुए इन तो मुझे वो कैश। सेकंड वाली अमाउंट है वो बीआरएस में दिखानी है। सेकेंड वाली अमाउंट दिखाएंगे। हम्म। मतलब 10,000 इन कैश किए, वो हम अपने बीआरएस में दिखाएंगे। बीआरएस में दिखाएंगे। हाँ, जो जो मार्च में नहीं हुआ बट अप्रैल में हुआ। ठीक है, ठीक है। मतलब आपका कट ऑफ डेट मार्च है, जो हाँ। अप्रैल में हुआ इसका मतलब वो मार्च में नहीं हुआ, और जो मार्च में नहीं हुआ है वो मुझे बीआरएस में दिखाना है। तो चेक इन कैश की है, मतलब हमारे पासबुक में कैश बुक में एंट्री हो गई है। हाँ हमने अपना डेबिट बैलेंस बढ़ा दिए। हाँ, बट हमने, बैंक ने अभी तक हाँ बैंक में अभी तक वो आया नहीं है, हाँ। तो हमें उसकी एंट्री बीआरएस में करनी है। हाँ। हाँ, बस हो गया। यही एंट्री थी। यही है। हाँ हाँ, बस। छोटे नहीं थोड़ी थोड़ी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं मतलब। नहीं, कोई बात आता नहीं। है। तो ऐसे प्रेशर कैसे वो करे, कंट्रोल कैसे करे? आपके पास बहुत इनफ टाइम है अभी, मतलब आपने आपने इतना अच्छा पढ़ा, इतने सेशन देखे हैं, आप क्वेरी पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ऑन ट्रैक हो। तो अभी आपकी एग्जाम कहाँ दूर है, अभी तो अभी आपकी आपकी एग्जाम आ गई, राइट, हाँ। जून वालों की तो। हाँ। तो आप कब बैठने वाले हो, जून में बैठोगे कि सितंबर में बैठने वाले जून में सर, जून हो? में। हाँ, तो आपको एक ही चीज बहुत प्रॉपर करनी है, कि लास्ट डे आपको क्या पढ़ना है, हाँ। उसका एक छोटा सा आपके पास नोट रेडी होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास। बिकॉज यस। प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट डे क्या पढ़ना वो क्लियर नहीं होता है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में। यस सर। तो आपके पास जैसे कोई भी बीआरएस चैप्टर उठाया आपने, ओके, बीआरएस में मान लो कि आपके पास टोटल सब कुछ मिला के 22 क्वेश्चन है, यस सर। तो 22 क्वेश्चन आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाओगे। नहीं बट जैसे करेंगे। ये ट्रांजेक्शन आपने मुझे पूछा उसको टिक करके रखोगे तो वो आप लास्ट में पढ़ पाओगे। यस सर। तो एक लास्ट डे रिवीजन नोट जैसा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास रेडी होना चाहिए, जो आपको कैटेगरी ए, मतलब ये हर एक चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी बी, उसके बाद कैटेगरी सी। ऐसा एबीसी जो बंदा करता है वो पास हो जाता है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है वही जिसका नक्की नहीं होता है वो कभी पास नहीं हो पाता है। हाँ, ऐसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से, मतलब दिन भर में मतलब अच्छे से किया। पर वो प्रेशर की वजह से मैं वहां पेपर जाने से मैं सब मतलब मैं वैनिश हो गया था पूरे हाँ दिमाग से कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हाँ एग्जैक्टली तो जिसने जिसको ये पता चल जाता है कि लास्ट मोमेंट पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारी इंपॉर्टेंट एंट्री, सारी इंपॉर्टेंट टेबल वो सब देख लिए, फॉर्मेट्स देख लिए,
तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। पर लास्ट मोमेंट आप में आप सब कुछ तो पढ़ सकते नहीं हो। तो लास्ट मोमेंट में जिन्होंने यस ये सर। शॉर्टकट नहीं बनाया अच्छे तरीके से, वो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो अभी मैं है मेरे पास मतलब 15 डेज है, तो मैं इसको अच्छे से कवर कर हाँ, लेती हूँ अच्छे हर से। एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में मुझे लास्ट डे क्या पढ़ना चाहिए, दैट यू शुड मेक ए एबीसी एनालिसिस वेरी प्रॉपरली। हाँ। एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे, जैसे आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देख लिए, यस सर। तो सिर्फ देखने से अकाउंट नहीं आएगा, आपको सम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ। जब तक सम होगा नहीं आपके पेन से, भले रफ में करो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आपके, आप प्रॉपर अकाउंट टू एंड बाई लिखो, वो सब तो चलेगा। लेकिन जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, तब तक आपका माइंड नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, अभी तो मैं सारे मतलब पहले भी करती थी, पर ना वो ऐसे अभी आप लोग के साथ पढ़ने से ना अलग माइंडसेट रहता है। जी। और जिसके साथ पेड करके मैं पढ़ी थी ना, वो लोग कई जगह मेरे को कंफ्यूज कर दे रहे थे, तो इसके लिए सब गड़बड़ हो गया तो। नहीं नहीं, चलो। इंस्टीट्यूट का ये जो एफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन एफर्ट है, कि वो लोग ऐसे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, क्वेरी लेक्चर आपके लिए रखते हैं। बराबर है। बट आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंट लिखोगे नहीं, तो एक अकाउंट जिंदगी भर नहीं आएगा। देखने से अकाउंट नहीं आता, लिखने से आता है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, विश ऑल द लक डियर। ओके, सो बाकी जो मुझे दिख रहे हैं, कुणाल, फिर गर्व, इशिका, जायद, अनुष्का, उपाध्याय एंड अजीत। ठीक है। आई होप गाइस you guys got the basic and query session is there. तो अभी भी कुछ हो तो बाद में आप पूछ सकते हो, बट अभी के लिए हमारा सेशन खत्म हो रहा है। सो जिनके भी नाम बोले, अगर आप वहां पर अभी हो, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द लक। मे गॉड ब्लेस यू ऑल सक्सेस। जस्ट कीप राइटिंग प्रैक्टिस। गुड बाय गाइस, विश यू ऑल द लक। या, जस्ट 30 seconds. Yes, yes. Goodbye, friend. Goodbye. Goodbye. Have a nice time. Wish you all the luck.